میں کہہ رہا ہوں ویڈیو کے اندر نہ آئے وہ جو ہم نے ریکارڈ بتانا مجھے
السلام علیکم. Thank you very much, Asaf, for the short notice में हमें ज्वाइन करने के लिए. चीफ सेलेक्टर एंड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस बार हमारे साथ हैं. मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी स्टेटमेंट करें एंड मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर सेशन. شکریہ رضا. السلام علیکم جی. آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا جس طرح کی نیوز اور اس حوالے سے آج کی آج کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے. تو بیسیکلی آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ میں نے جو چیف سلیکٹر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ میں چھوڑنے جا رہا ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں. نہ اس کا جو مینلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آگے جو پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل اگلے 2 سالوں میں 10 میجر ہماری کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے. اور مینلی اس میں کچھ ٹورز ایسے ہیں کہ وہ زیادہ تر ہم پاکستان سے باہر رہیں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے ایز اے چیف سلیکٹر کام کرنا اور ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس کرنا, ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھنا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے بورڈ سے بات کی اور ان کو کہا کہ میرے خیال میں جیسے کہ ہمارا انیشیلی جب میں آیا تھا تو اس ٹائم بات ہوئی تھی کہ یہ ڈوئل رول اس ٹائم مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ آپ کریں. تو اس وقت میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آئی ول ڈو دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم پہ ہماری آپس میں جو بات ہوئی تو یہی ہوئی تھی کہ کہیں بھی اگر مجھے لگے گا کہ اب میرے لیے ٹائم دینا دونوں کے لیے مشکل ہے تو یہ ایک کرکٹ بورڈ کی اچھی چیز تھی کہ انہوں نے مجھے ایک آپشن دی کہ اس وقت آپ بات کریں اور سکتے ہیں. تو آئی تھنک کیپنگ ان ویو دا فیوچر اور مور فوکس آن کرکٹ اسپیشلی پاکستان ٹیم, ابھی مجھے لگا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے. اور میں نے بورڈ سے بات کی کہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور جسٹ لائک ٹو فوکس آن کوچنگ. اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ اناؤنس کر رہا ہوں. اور کرکٹ بورڈ کا شکریہ کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اینڈ آبویسلی آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس اب نیکسٹ اپنی جو کوچنگ ہے, پلیئرز ہیں, پاکستان ٹیم اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ ریومرز جو چل رہے ہیں کہ شاید اس کی کوئی وجہ چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہے یا بورڈ نے مجھے کچھ اس کے بارے میں کہا ہے یا شاید عمران بھائی سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کی کوئی ریزن ہے یا کچھ اور اس کی وجہ ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک رول نہ جاتا, پھر میں ایز اے چیف ہیڈ کوچ بھی کام نہ کرتا. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بالکل میرا اپنا ایک چوائس ہے کہ اس طریقے سے میں نے جانا ہے اور آگے پاکستان کی کرکٹ پہ اور پاکستان ٹیم پہ فوکس کرنا. میرے خیال میں جتنی دیر بھی میں نے کام کیا اس ٹائم پہ جو بھی بہتر ڈیسیجنز ہو سکتے تھے. اور اس ٹائم پہ کیونکہ میں ریسنٹلی کھیل کے بھی آیا تھا, پلیئرس کا بھی پتہ تھا, سلیکشن کے حوالے سے, کوچنگ کے حوالے سے تقریباً 1 سال سے کچھ مطلب 1.25 سال. تو کوشش میں نے کی کہ جو بھی بیسٹ ڈیسیجن ان انٹرسٹ آف پاکستان کرکٹ ہوں وہ کریں. کافی پلیئرز آئے, کافی نے اپنا جگہ بھی بنائی ٹیم میں, اور میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ صحیح طرف ہم چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ آگے جو بھی آئے گا وہ مل کے اس کے ساتھ مزید جو ہے اچھا کام کریں گے. اور پاکستان کی ٹیم کو جو ہمارا ایک ویژن ہے, جو ہمارا ایک مقصد بھی ہے کہ ٹاپ 3 میں ہم نے لے کے آنا ہر فارمیٹ میں, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ لے کے آئیں. بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. پلیز کوشچنس جو ہے وہ آپ لوگ رپیٹ نہ کریے گا. جو کوشچن ہو جائے اس پہ آپ اپنی نیکسٹ کریے گا اور اپنا ریس پلیز ہینڈ کریے گا. پہلا کوشچن یعقوب صاحب نے
दूसरा आप जैसे बता रहे हैं कि राजस्थान जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है उसकी वजह से लेकिन जब टाइमिंग देखनी है आपकी बदलावें भी आने वाली है तो टाइमिंग बहुत बड़ी क्रिएट करेगी इस वक्त ये लगता है प्रेशर है आपके ऊपर क्योंकि अभी बहुत कम दिन रह गए नया जगह इंस्पेक्टर आएगा तो वो कैसे मैनेज करेगा। और दूसरी बात यह है कि एक मैसेज आपको शायद ये भी एक बात है कि पहले भी एक मैसेज जब आपके दूसरे बगैर उन्होंने कोचेस लगाए थे जो मेम्बर होते हैं सिलेक्शन के लिए तो उसको भी आपको ये क्वेश्चन किया गया था कि ये भी आपका एक कॉन्फिडेंस लग रहा है कि देखें मैंने पहले ही इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक आप जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं और न्यूजीलैंड 30 नवंबर तक मैं हूँ और ये जो 2 टीमें हैं ये सिलेक्ट करूँगा। जो नया चीफ सेलेक्टर आएगा वो 1 दिसंबर से काम करेगा और उसके पास टाइम भी है और वो आके पहली जो उसकी सिलेक्शन होगी वो साउथ अफ्रीकन सीरीज़ होगी। इसलिए आई थिंक कि बड़ा सोच समझ के सारा कुछ किया है क्योंकि उसमें मैंने अभी न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान टीम के साथ जाना है तो पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होगी और उसमें जाहिर है उसको वॉच करना वहाँ पे जाना। ये कोचेज़ वाला भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सारे मेरे कोलीग्स हैं। अभी भी आप देखें मुल्तान में उनके साथ मीटिंग हुई, उनके साथ मिल के काम हुआ। अभी मैं मीटिंग करके आया हूँ उनके साथ पिंडी में रिगार्डिंग दीज 2 टीम्स न्यूजीलैंड की और जिम्बाब्वे की। कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके साथ। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई फ्यूचर विजन कोचिंग के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से और डिस्कशन की हमने और जो भी प्रोबेबल्स भी बनाए और टीम के हवाले से भी इंशाल्लाह जो 19 को अनाउंस होनी है। तो ये बिल्कुल कोई इसमें डिसएग्रीमेंट कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। खामखा की ये र्यूमर्स हैं और खामखा की ये चीज़ें ऐसे मशहूर हुई, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बार जज्बा किया गया था कि एक ही शख्स को 2 जिम्मेदारियां दी गई। आप समझते हैं कि जो पिछले 13 महीने थे आपने बहुत ज़्यादा दबाव में डाले और उस दबाव की वजह से आपको एक ओहदा छोड़ना पड़ा या हमारे सिस्टम में जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को काफ़ी करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन इस सिस्टम में रहते हुए ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इससे जान से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। सिर्फ यही वजह बदलना आपके एक ओहदा से हम दोबारा वापस चले गए पुरानी जगह के बाद में नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बड़ा अच्छा रहा है साल सवा साल क्योंकि जितना अच्छा जो कोचेस प्लेयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल करीब से उनके साथ उनका रिलेशन होता है मेंटली, उनकी जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस हैं टेक्निकली सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी तो आपको इनपुट मिल नहीं सकती। तो उस टाइम पे क्योंकि मैं क्रिकेट खेल के भी आया था, मैं मोस्टली प्लेयर्स को जानता भी था, उस टाइम की ज़रूरत थी ना। आपकी एकेडमीज उस टाइम पे काम कर रही थी, आपके बाकी सिस्टम भी उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल में ये बेस्ट डिसीजन था और ये थ्रू आउट अच्छा रहा है। अब मैंने पहले भी कहा कि अब रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जो FTP है वो बहुत ज़्यादा आपकी बैक टू बैक इवेंट्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसमें कि वर्ल्ड कप्स हैं, फिर आपकी एशिया कप हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ें हैं और मोस्टली मुझे भी बाहर रहना है टीम के साथ। तो आई थिंक ये इस टाइम की एक ज़रूरत है जिसको देखते हुए क्रिकेट की इम्पोर्टेंस और उस पाकिस्तान टीम के साथ जो है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस टाइम पे अब मैंने इस तरफ जाना है ताकि जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कोई और बंदा करे। बाकी मिसबा आप कह रहे हो कि फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए ये फैसला आ रहा है। अगर फ्यूचर से छोड़ के थोड़ा पीछे चले जाए, क्या श्रीलंका से लाहौर में शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में शिकस्त और इंग्लैंड में शिकस्त, ये भी एक फैक्टर है कि आपका फोकस थोड़ा आप चाह रहे थे कि ये भी एक मैटर करता है, ये टीम सीरीज में शिकस्त है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं। ये मैं अगर सेलेक्टर ना भी हूँ एज अ कोच भी शिकस्त जो भी चीज़ है अल्टीमेटली आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी और चाहे मैं सेलेक्टर हूँ या ना हूँ वो
जीतना हारना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है एज हेड कोच। ऐसी कोई चीज़ नहीं, आपने इन सारे प्रेशर्स को हैंडल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है और सिस्टम के लिए, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत है कि इसको स्प्रेड करके ज़्यादा फोकस इस तरफ किया जाए और किसी और को ये काम करने दें। भाई आप एक डिपार्टमेंट के साथ ये है तो उसका बता दें कि उसका क्या स्टेटस है। दूसरा, आपने ये हेड कोच का ही ऑर्डर यूज किया, चीफ सेक्रेटरी अब रह सकते थे हेड कोच, इसकी क्या बात है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरी जो पैशन है वो ऑन द फील्ड है, फिज़िकली ज़्यादा इन्वॉल्व होना, काम करना। रिसेंटली मैंने क्रिकेट छोड़ी है, एनर्जी है, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी देर मेरे अंदर एनर्जी है, आजकल की जो कोचिंग है उसकी बहुत डिमांड है, फिटनेस चाहिए आपको, आपने फिज़िकली जाके प्लेयर्स के साथ फील्ड पे काम करना होता है। स्पेशली अगर बैट्समैन है उनके साथ टेक्निकली आपने काम करना है तो आपको उनको फील्ड करना है, फील्डिंग में आपने उनके साथ रहना है। मैं समझता हूँ अभी मेरे अंदर वो एनर्जी है, फिटनेस है, मैं इसको कर सकता हूँ और पैशन है उस चीज़ का। और मेरा पैशन वो दूसरी तरफ इतना नहीं है, इस वजह से मैंने ये चूज़ किया। सुई गैस इज़ नथिंग टू डू विद दैट, वहाँ से NOC पे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ से मेरा कोई ताल्लुक फ़िलहाल नहीं है। जब तक मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ तो उसका कोई लेना देना नहीं है। फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो पाकिस्तान टीम पे है, पाकिस्तान की क्रिकेट पे। सवाल के दो पार्ट हैं। एक तो जितना भी आपका चीफ सेलेक्टर होता क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? दूसरा ये कि आपने हेड कोच का इंतखाब किया, वहाँ से बहुत सारे कप्तान और हेड कोच इस बात का जिक्र करते रहे कि हमें जो 15 स्क्वाड दिया गया उससे फाइनल लेवल नहीं बनती रही। क्या आपको वही चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेगी? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहला आपने क्या, सॉरी जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिसीजंस करते हैं और उसमें कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपको पे ऑफ करते हैं। इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील कि मैंने अपनी तरफ से जो ज़रूरत थी उस टाइम पे, जो डिमांड थी इंटरनेशनल क्रिकेट की और पाकिस्तान टीम की, उसको देखते हुए डिसीजंस किया और उसमें काफ़ी डिसीजंस जो है उन्होंने पे भी किया, कुछ डिसीजंस आपके गलत भी होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें काफ़ी हमारे पास नए प्लेयर्स आए हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं। बॉलिंग में नसीम शाह है, शाहीन एक डिफरेंट बॉलर बन के अब सामने आया है, फिर उसके साथ हारिस रऊफ है, हैदर अली है, काफ़ी प्लेयर्स अगर आप देखें हर उसमें इमर्ज हुए हैं और कुछ जो पहले प्लेयर खेल रहे थे उनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है। तो ओवरऑल मिक्स होता है, ये नहीं होता कि आपका सब अच्छा है। आपके कुछ डिसीजंस अच्छे होते हैं, अच्छा आपको पे करते हैं, कुछ डिसीजंस आपके ठीक नहीं भी होते, जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट आपके डिसीजंस कुछ जो सिलेक्शन थी वो नहीं पे ऑफ किए। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल। ओवरऑल कोशिश की कि जो ज़रूरत थी पाकिस्तान को उससे ऑनेस्टी के साथ डिसीजंस करूं और उस हवाले से मैं सेटिस्फाइड हूं कि पाकिस्तान एक सही साइड पे जा रहा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छी टीम डेवलप हो। अभी भी जो है परफॉर्मेंस कर रही है, मज़ीद मेरे ख्याल में बेहतर हो। दो चीज़ें, एक तो आपके इस अहदे से मुस्ताफी होने के बाद आप लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो नया तजुर्बा किया गया था चीफ सेलेक्टर और हेड कोच थे वो शायद नहीं चल सकता, जो हमारा कल्चर से रहता है। दूसरा, अब लाजवाब आप दूसरे कोचिंग में खुल होगी तो आपका बतौर कोच अब क्या टारगेट होगी? T20 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में क्या टारगेट? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा जो टारगेट है एज ए कोच वो यही है कि आप टॉप 3 हर फॉर्मेट में टॉप 3 में, और पाकिस्तान टीम की ये कैपेबिलिटी है और ये पाकिस्तान का पास्ट भी उसमें ऑब्वियसली जो ICC के इवेंट आ रहे हैं, एटलीस्ट हमें ICC इवेंट जीतना चाहिए और हमारा टारगेट भी यही है। 2 T20 वर्ल्ड कप है और हम कर सकते हैं, तो वो उस पर फोकस है। तो कैसे करना है, कैसे टीम को लेके चलना है। जहाँ तक आपने तजर्बे की बात की, आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। जो उस टाइम ज़रूरत थी उसके हवाले से, जैसे हमारा अभी सिस्टम उस वक्त चेंज आ रही थी, डोमेस्टिक भी चेंज आ रही थी, उसको देखते हुए ये साल का तजर्बा ये अच्छा रहा। अब
डिफरेंट डिमांड्स हैं आगे की एफटीपी को देखते हुए और सारी मसरूफियात टीम को देखते हुए, तो उसको देखते हुए अभी ये डिसीजन या जो भी चेंज आ रही है या जो मैं एक रोल छोड़ रहा हूँ उसकी रीज़न वो है। ये नहीं कह सकते कि पिछला सही काम नहीं हुआ या पिछला सही, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, अच्छा रहा है और उसमें से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने आई। बड़ी बात थी 2 के बाद आपकी सैलरी और भी बड़ी सैलरी डिस्कस होती रही है असेंबली के फ्लोर तक। अब आप क्या कोई मामला तय पा गए हैं क्या? सैलरी अब आपकी जो थी और उसमें कितना रिडक्शन होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के यही है कि कम होनी चाहिए इतना है, तो क्या समझते हैं? और दूसरा कोई आपने प्रपोज किया है कि चीफ सेलेक्टर अपने तजर्बे की रोशनी में किसको होना चाहिए आपकी नज़र में जदीद मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से? देखेंगे ये प्योरली क्रिकेट बोर्ड पे है, वो देखेंगे किसको चीफ सेलेक्टर देखना है। मेरे से अगर ओपिनियन लेंगे या पूछेंगे उस टाइम पे तो मैं ज़रूर कहूँगा किसको रखना है क्या। सैलरी की जहाँ तक बात है वो भी उस टाइम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमें पता था कि हाँ जी इस रोल में क्या मिल रहा है मुझे और एज ए हेड कोच क्या है। ऑब्वियसली जो चीफ सेलेक्टर की उस मद में जो चीज़ मुझे मिल रही थी वो नहीं मिलेगी और एज ए हेड कोच जो मुझे उस टाइम पर से वो मुझे मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। शाम सवाल ये भी कहा जा रहा है कि जो नए 6 टीमों के हेड कोच आया वो मोशर आदमी चावल से किसी आगे तो ये नहीं वो कुछ बात में साथ में रहते थे, तो ये भी कोई नहीं। पहले मैं बता चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस टाइम बिज़ी था इंग्लैंड में, तो उस तरीके से सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये सारे मेरे कोलीग हैं जो नए हैं, रज़ाक, फैसल इकबाल, उसके बाद बासित भाई, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ कहीं ना कहीं एज ए प्लेयर। बासित भाई सुई गैस के कोच थे, उनके साथ काम किया। रज़ाक भाई के साथ बहुत एज ए प्लेयर भी काम किया, एज ए कोच वो सुई गैस में भी रहे हैं मेरे साथ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, शायद अनवर वो भी क्रिकेट भी खेले हुए हैं, उनके साथ अभी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। इस डिसीजन में उसमें एक कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई इस वजह से कुछ भी नहीं। अच्छा मिस्टर, आपने तो चीफ सेलेक्टर का ऑर्डर छोड़ दिया, लेकिन जो नीचे एसोसिएशन है स्टेट उनकी भी वो भी चीफ सेलेक्टर और हेड कोच हैं। क्या आप समझते हैं कि आपने जो डेलीगेशन छोड़ा है तो नीचे जो टीम्स हैं उनके ऊपर इस डिसीजन का कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि टैलेंट जितना भी है वो डोमेस्टिक से ही आगे आता है, तो अगर उसके अंदर चेंजिंग आती है तो क्या फर्क पड़ सकता है इस पर इंटरनेशनल टीम की कारकर्दगी में? और दूसरा, बाबर आजम को कैप्टनसी के लिए आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं सर? देखिए वो तो बाबर की जो कैप्टनसी की बात थी वो T20 वर्ल्ड कप तक थी और ये सीरीज़ अभी उसमें आती है, तो ये तो प्योरली बोर्ड का डिसीजन है, कोई इसके बारे में क्या आगे फैसला करते हैं। जहाँ तक आप एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो कोचेस काम कर रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा ना कि चीफ सेलेक्टर आएगा उसके साथ सिलेक्शन बाकी किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो जो भी बेहतरी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो भी बेहतर मेरे ख्याल में देखेंगे उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा बोर्ड। अभी क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज जो है उसमें आपको एज अ सेलेक्टर जो है वो मौजूद थे, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा क्योंकि नेशनल T20 भी चल रहा है, तो इस तमाम ग्रुप में आगे जिम्बाब्वे सीरीज के ये सब यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं क्योंकि रिसेंटली T20 को देखा जाए सीनियर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, नए लड़के भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस रुझान में किस तरह से नए लड़कों के मुकाबले में आप T20 भी करें, तो न्यूजीलैंड के क्या सीनियर्स को दोबारा मौका मिलेगा? देखिए मिक्स एंड मैच करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम जो जिनको हम खिला सकें, ट्राई आउट कर सकें, उनको लेके आए इस सीरीज़ में फॉर द सेक ऑफ जस्ट चेंज ना करें। क्योंकि आप देखें कि हमारी जो दोनों वाइट बॉल की टीम्स हैं मोस्टली उसमें यंगस्टर्स हैं और उसमें कोई ऐसे सीनियर प्लेयर नहीं है कि जो बड़े अरसे से खेल रहे हों। ज़्यादातर यंग लॉट है और उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली ही नहीं है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो उनको एक्सपीरियंस मिले, वो खेलें। हाँ, जहाँ कुछ ना कुछ यंगस्टर्स को जहाँ ज़रूरत है जिनको हम आगे चांस भी सीरीज़ में दे सकें उनको कंसिडर कर रहे हैं और देखेंगे कैसे इसको लेके चल रहे हैं। अपने दोनों जॉबों पर काम किया है, कोई तो चीफ सेलेक्टर की, दोनों में से किस ओहदे में ज़्यादा प्रेशर?
ऑब्वियसली दोनों में प्रेशर होता है, ये बात नहीं है। जब आप टॉप लेवल पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसमें आप पे प्रेशर होता है। एज ए हेड कोच भी आप पे ठीक ठाक प्रेशर होता है और एज ए चीफ सेलेक्टर भी आप पे प्रेशर होता है, काफ़ी प्रेशर होता है। तो बेसिकली ये नहीं आपको गेज कर सकते कि दोनों में जी कम प्रेशर। मेनली मेरे ख्याल में डिसाइड आप करते हैं इस बेसिस पे कि आपका पैशन किस तरफ ज़्यादा आपको लेके जाना चाहता है, तो उसमें आप बेहतर फिर प्रेशर हैंडल भी करते हैं। तो मुझे लगता है इस डिसीजन में जो मेरी ड्राइविंग फोर्स है वो मेरा पैशन है, और वो ये है कि प्लेयर्स के साथ काम करना, फिजिकली इन्वॉल्व होना और उसको लेके चलना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 30th November, 30th 30.